Alright, G, next question says, an Uber ride with a Pakistani. Dear Junaid, I hope this email finds you well. My name is ABC and I'm an engineer working in a tech company in Brisbane. I hail from New Delhi, India, and I'm a huge fan of your work, especially the Ask Ganji Swag show. I love Brisbane, man. I really wish I can go there again, especially in summers. वहाँ पे मैंने एक वियतनामीज एग खाया था. सो यू नो हिल्टन के बाहर जो एक वॉकिंग स्ट्रीट टाइप है, देयर इज लाइक अ वॉकिंग स्ट्रिप. वहाँ पे देयर आर लाइक पॉपअप स्टोर्स. उसमें मैं वाज सो गुड. कहाँ से याद आ गया? बाय द वे वियतनाम में फूड भी बड़ा अच्छा था. फ मैंने खाया, उसको फो लिखते हैं बट फ पढ़ते हैं. एंड बान में इट वाज रियली रियली गुड. और भी बहुत चीज़ें खाई पी बट फॉर some other time. I wanted to share a recent experience I had which left me both confused and reflective, and I thought you might have an interesting take on it. The other night I was returning from a friend's house party, and as always I was on the phone with my ammi. She advised me to take an Uber instead of public transport since it was already 3 a.m. I booked an Uber and the driver, a Pakistani gentleman named ABC, probably in his early 30s, greeted me warmly, assuming I was from Pakistan. I told him I was originally from New Delhi and the conversation flowed naturally at first. Out of politeness and genuine concern, I asked him about the situation back home, especially after last year's floods. He mentioned that his family was safe but went on to say that democracy in Pakistan had ended. He also brought up Imran Khan being in jail. Now this is where things took a U-turn, not a U-turn, things took a turn. I made the mistake of sharing my perspective, saying that from what I had read and heard, Imran Khan didn't even seem very pro-democracy himself. I mentioned how he seemed like a pawn for the military, unhappy when others got the same chance in the game of power. What followed was 20 minutes of him rudely lecturing me, passionately defending Imran Khan as the ultimate Pakistani of the century. He completely forgot he was on a job in the hospitality industry, serving a customer. His voice got louder and his words harsher, filled with cursing and personal frustration. All I could do was mutter, whenever he paused to breathe. By the end of the ride, I was so drained that my after-party buzz was entirely wiped out. I want to clarify that I hold no animosity towards Pakistanis. Some of the kindest people I've met have been Pakistani, like an Uber driver who went out of his way to help me with my luggage at the airport. But this incident made me wonder, why are so many Pakistanis so politically active, especially after moving abroad? In India, student politics in universities is often the foundation of political engagement, but from what I understand, student politics doesn't really exist in Pakistan. So what makes the youth there so politically charged and vocal even when living overseas? Is it the socio-political climate back home, or is it the frustration of not being able to influence change directly? I would love to hear your thoughts on this, especially since you have such a nuanced understanding of Pakistani society. Thank you for reading this long email, and please keep up the amazing work. You have fans all over the world, including this Indian engineer in Brisbane. Warm regards. Thank you so much for the lovely email. और जैसे कि आपने बताया कि ये पाकिस्तानी ऊबर राइड में आप गए, and then naturally there was a conversation, और फिर the guy went out on a rampage because पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है. अब इसके बहुत सारे लेयर्स हैं. जैसे कि आपने राइटफुली कहा कि पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है. पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन कर दी गई थी जनरल ज़िया के दौर में, बिकॉज ऑब्वियसली वहीं से किसी किस्म का चेंज आ सकता है. एंड द रीज़न वाई वी हैव अ शिटी पॉलिटिकल क्लास इज़ बिकॉज जो एक ट्रू पॉलिटिशियन होता है, जो स्टूडेंट्स के रैंक से निकलता है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा नुआंस्ड होता है. अब बिलावल को क्या पता एक आम बंदे के क्या मसले हैं, कराची यूनिवर्सिटी में की लड़कियां बसों में लटक के कैसे आती हैं, उसको क्या पता इस चीज़ का, राइट? लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गुजरा है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे लड़ा है, उसको कंसर्न्स पता है, एक स्टूडेंट सोचता कैसे है, उसके मसले मसाइल क्या हैं, उसका इशू क्या है. सो जब आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ख़त्म की, और वो इसलिए ख़त्म की क्योंकि यहाँ से एक सोशल चेंज की वेव आ सकती है. सो जो हमें कंट्रोल करते हैं वो कहते हैं यार इनको तो ज़रा साइड पे लगाओ ना, ठीक है ना. सो द लास्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो आए लीडर्स, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, शेख रशीद साहब थे. अब उनकी उम्रें देखें आप, देर लाइक यू नो एट द फाइनल ट्राइमेस्टर ऑफ देयर लाइव्स. तो फिर उसके बाद कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स ऐसा आया नहीं. तो फिर हमारे पास रह दे कि वही इलेक्टेबल्स बचते हैं, जो कि या तो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके मुरीद हैं, या फिर रूहानी पेशवा. सो लाइक ये भी एक अजीब क्लास है यहाँ पे पॉलिटिक्स में, कि पीर साहब जो हैं, जो मुरीद, जिनके दर से मुरीद पीट करके नहीं निकल सकता, वो आज़ादी दिलवाएंगे इन लोगों को. मतलब क्या स्टूपिड कॉन्सेप्ट है, राइट? तो यस, वो क्लास रह जाती. या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट.
ठीक है। और तो वो अब इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो हैं वो भी एक पावर डायनामिक्स का हिस्सा है। तो फिर रह दे कि अब वो ये सारे जो लोग हैं ये इतने एक छोटे से एलीट बबल का हिस्सा हैं, इनको दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम्स आर। और उनकी वो प्रॉब्लम्स रही नहीं, वो कभी एयरपोर्ट पे फंसेंगे तो पता चलेगा ना कि एयरपोर्ट हमारा कितना स्टूपिड है। कि जी सिविल एविएशन जिसका काम रेगुलेशन करना है एयरलाइंस के ट्रैफिक को, वो ट्रॉली और वॉशरूम क्यों साफ कर रही है सिविल एविएशन? बट लाइक समझ रहे हैं आप? सो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। किसका कॉल आ रही है? थिंक इट्स माई मॉम्स फोन। सो ये तो रही बात स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। अब रही बात कि हमारे लोग इतने चार्ज क्यों हैं। वी हैव नथिंग टू डू, देर इज नो कल्चर, देर इज नो कल्चरल एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस। रिसेंटली ऑन माई ट्रिप टू वियतनाम, एज आई ऑलवेज से कि मुझे लाइव म्यूजिक बहुत पसंद है, एंड आई हैड सम फ्रेंड्स फ्रॉम ओवरसीज एंड फैंस, तो उनको भी मैं ये बता रहा था कि यार दिस इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय। मैंने एक रेड बुल ली या एक जिंजर एल ली और मैं बैठा और वो एक वियतनामीज लड़का जो है अडेल के गाने गा रहा था, एंड आई वॉज रियली एंजॉइंग। वी डोंट इवन हैव दैट। रह दे के वो सुबह 4 बजे तक यहाँ कवाली होती है ज़ोर ज़ोर से, दैट्स इट। सो कल्चर नहीं है, सिनेमा नहीं है, तो अच्छा फिर गैप बहुत है, एंटरटेनमेंट नहीं है। न्यू ईयर्स पे यहाँ सब बंद हो जाता है जब दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है। तो हमारे यहाँ सेलिब्रेशन एज सच कोई है नहीं। रह दे के सेलिब्रेशन क्या है कि कभी इंडिया को हरा दिया तो 2-3 दिन की एक वो हमारी एक हो जाती है। देखे ना आज तक मीम भी देखे तो वही चलता है, 152 पे 0, वो जो हराया था चैंपियंस ट्रॉफी। 2017 की बात है यार, मेरी अजीब शक्ल होती थी इराक में था उस दिन में जब ये पाकिस्तान मैच जीता था, तो वही लेके बैठे हुए हैं। तो खुशियाँ नहीं हैं, खुशियाँ नहीं है, खुश नहीं है। अच्छा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक ये भी होता है कि उनको ना यहाँ सॉर्ट ऑफ, देखो भागना सब चाहते हैं और खुशी से कोई नहीं भागता। कोई खुशी से अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाता, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के नहीं जाता, मजबूरी में जाते हैं। तो यहाँ पे जाना सब चाहते हैं, जो पीछे रह जाता है ना वो दूसरे को गिल्ट ट्रिप करता है, तुम तो भगोड़े हो। जैसे कि जब मैं दुबई से बैठ के वीडियो बनाता था, लोग कहते थे तुम्हें क्या भाई, तुम तो दुबई में बैठे हो, तुम तो भाग गए हो इस मुल्क से, तुम क्यों बात करते हो इस मुल्क की। फिर जब इस मुल्क में आया अब बात करो, इतना प्रॉब्लम है तो यहाँ से चले, अरे तो डिसाइड कर ले कहाँ जाऊँ मैं। तो ये मसला तो वो गिल्ट में डालते हैं, खासतौर पे ओवरसीज़ को। देखिए ओवरसीज़ की बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है, और ये कहना कि ओवरसीज़ मुल्क चलाते हैं, नहीं, ओवरसीज़ अपना घर चलाते हैं। और उस घर चलने में क्योंकि स्टेट बैंक के थ्रू ही चलना है तो वो सॉर्ट ऑफ फिर वो उसको प्राइड लेते हैं। वो अपने पेरेंट्स को या बीवी बच्चों को पैसे भेजते हैं, मुल्क को पैसे नहीं भेजते, ठीक है। हाँ स्टेट बैंक वो डॉलर रख के आपको पीकेआर दे देता है और 1% काट लेता है। जिस तरह मेरी यूट्यूब की रेमिटेंस जब आती है, स्टेट बैंक ग्रेशियसली वो सारे डॉलर रख लेता है और उस पे 1% मजीद काट के मुझे पीकेआर पकड़ा देता है, राइट। तो मैं पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रहा, मैं यहाँ अपने आप को सर्व कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस है। मगर वो चूंकि चैनलिंग वो है, तो अब मैं ये कहूँ जी मैं तो मुल्क को हर महीने हज़ारों डॉलर ला के दे रहा हूँ, नहीं भाई, मैं अपने लिए ला रहा हूँ, चैनल वो है, ठीक है ना। अगर कल को यूट्यूब बोले कि भाई साइड पे ले ले, तो कितने लोग ले रहे होंगे आपको पता ही है। एनीवे, तो चूंकि उनको इतना गिल्ट में डाला जाता है। अच्छा फिर वो ऑब्वियसली फिर वो जब जाते हैं दूसरे मुल्क देखते हैं, कहते हैं यार हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं, तो फिर वो और ज़रा करते हैं कि यार शायद मुझे अपनी हुब्बुल वतनी और दिखानी पड़ेगी। तो वो उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ गिल्ट फैक्टर भी या तो खुद से आता है या लोग डालते हैं कि तुम तो चले गए, तो वो पॉलिटिकली और चार्ज हो जाते हैं। एंड अगेन बाहर जाके भी हमारी एक जनरल पॉपुलस की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, बाहर जाके भी एज सच कोई लाइफ नहीं होती। वो सिर्फ हम ग्लोबल पोजीशनिंग हमारी ब्रिस्बेन होगी, मगर ये पोजीशनिंग हमारी बिल्कुल निहारी पाए और बिरयानी से बाहर नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा वियतनामीज़ है कि आप भी खाएं, सबका अपना अपना टेस्ट है। मगर सिडनी में कितने लोग रहते होंगे, लेकिन सिडनी में जो है ओपेरा हाउस कितने लोग अंदर गए हैं आज तक? नहीं होंगे। आर्ट्स को इतना हम पसंद नहीं करते, या फिर हम ओपन नहीं होते दूसरे आर्ट्स को देखने के लिए, या फिर कोई थिएटर देख रहा है कोई, क्या हमारी वो आदतें नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आप घर में बारबेक्यू कर लें, 4 फैमिलीज़ बुला लें, 10 बजे तक JBL के स्पीकर पे या तो कैरियोके कर लें या गाने गा लें, कोई इस तरह के भी होते हैं, और फिर 9:45 बजे रैप अप कर लें, क्योंकि फिर पुलिस आंटी पुलिस बुला लेगी बस। तो वो एक्सपोजर भी फिर वो अपनों में ही रहता है। फिर वही डिस्कशन जियो, ARY, समा TV, पॉलिटिक्स, यूट्यूबर, इमरान रियाज ने ये बोला या फिर मतियुल्ला जान ने ये बोला, वगैरह वगैरह। तो वो जो पूरी ज़िंदगी ही उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी, तो उसके बाद बात करने को है क्या।
स्मॉल टॉक भी नहीं आती हमें, और फिर कोई एक्सपोजर भी नहीं होता एज सच ज़िंदगी में कि किसी और चीज़ पे बात कर। लाइक फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हो, वो आपसे इंजीनियरिंग के 10 सवाल कर सकता था, इवन दो आपने पहले पूछा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, वो कहता कल्ली वल्ली छोड़े यार, मुझे ज़रा इसके बारे में आप करते क्या है, अच्छा यहाँ तक ये राउट आपने, आप इंजीनियर, आप ऊबर क्यों नहीं चला रहे, मैं ऊबर क्यों चला रहा हूँ, हाउ कैन आई बी वेयर यू आर, यू नो, वो इनक्विजिटिव अगर लोग हों तो। लेकिन हम फजूल के पॉलिटिकली चार्ज हैं। अच्छा चार्ज पूरे हैं, पता कुछ नहीं है, और ये मैं थ्रू आउट कह रहा हूँ, हर पार्टी के सपोर्टर को मैं कह रहा हूँ, वो उनको एज सच पता कुछ नहीं होता, बस सिर्फ शोर करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, और वो सिर्फ अपने दिल को तस्कीन देते हैं कि मैं मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैंने आवाज़ उठाई थी। नहीं, आपने कमेंट किया था। कमेंट इज़ नॉट आवाज़ उठाना, कमेंट इज़ कमेंट करना। लोग कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम वीडियो तो बना सकते हैं, हम कम से कम कमेंट तो कर सकते हैं। नहीं भाई, आप हमेशा छोटा वाला रास्ता ही क्यों चूज़ करते हो? हमेशा नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते तो हम यही कर लें, नहीं, आप बड़ा काम करो ना। लेकिन नहीं, खैर छोड़े, बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। पॉलिटिकली चार्ज हैं, और फिर जाहिर है प्रोपागेंडा का भी शिकार हैं लोग, उससे आगे कुछ देखते नहीं हैं, दे आर नॉट ओपन टू डिबेट। अच्छा डिबेट नहीं करने आती, वो लोग चोर हो गए तो तुम भी तो चोर हो, बस ये डिबेट है लेवल। डिस्कशन द आर्ट ऑफ डिसएग्रीइंग हमें नहीं आता। अगर आपको जैसे आप कह रहे हो कि वो गालियों पे उतर आया और चीख रहा था रात के 3 बजे टैक्सी के अंदर, पहले तो आप 1 स्टार रेटिंग दें भाई को, पहले तो काम आप ये करें। और ये गालियाँ देना, अरे भाई आप काइंडनेस से भी तो बात कर सकते हो ना, कि आप मुद्दा रख सकते हो धीमे लहजे में भी। लेकिन देखिए शोर वही करता है जिसकी बात में वजन ना हो ना, तो वो शोर के जरिए वजन डालने की कोशिश करता है, तो वो गालियों के जरिए वजन डालने की कोशिश करता है। हमेशा याद रखिएगा, जिसके पास साउंड आर्ग्यूमेंट होगा ना, वो कभी भी शोर नहीं करेगा, वो तहम्मुल से आपकी बात सुनने को बोलेगा चलो ठीक है तू चीख ले। रेसलिंग में क्या होता था, हमेशा जो ज़रा उछल के आता था ना, वो अगला कहता था चल तू उछल ले, जितना कूदना है तो कूद ले। फिर जब वो थक जाता था ना, फिर वो अपनी टेक्निक से उसको हराता था। तो सिमिलरली अगर किसी आर्ग्यूमेंट में आपकी आवाज़ ऊंची है, इसका मतलब आपका आर्ग्यूमेंट नीचा है, इसलिए आपकी आवाज़ ऊंची है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट सॉलिड होगा, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होगा, ठीक है, तो आपको ना कभी आपके मुंह से झाग नहीं निकलेगी, आप पागल नहीं होंगे, आप गालम गलोच नहीं करेंगे, आप लफंटरबाजी नहीं करेंगे, आप प्यार से धीमे तरीके से अपना तज्जिया रखेंगे कि भैया आप न्यू दिल्ली से हैं, आपको जो फीड मिल रही है वो शायद यही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। खैर, तो भाई पॉलिटिक्स, अंडरवेयर का कलर, सेक्सुअलिटी अपने तक ही रखा करें। चाहे वो आंटी जितना पूछो ना किस कलर की चड्डी पहने हो, नहीं बताएं। ये चीज़ें पर्सनल रखें, ना डिस्कस करें, ना जाने। मैं तो बल्कि ख़ास तौर पे देसी लड़कियों को मैं हमेशा ही बोला है, एयरपोर्ट पहन के बैठें, बात ही ना करें। और अगर अगला बात करने की कोशिश करे तो अंग्रेज़ी में या किसी और ज़बान में जवाब दें, जो आपको लगे उसको आती नहीं है। आप भी चुप, वो भी चुप, सौ सुख। फजूल की डिस्कशंस में ना जाएं कि मोदी क्या कर रहा है या खान क्या कर रहा है। बैठे तुम दोनों ब्रिस्बेन में हो यार, तो वहाँ की बात करो, जहाँ रहते हो उसके बारे में सोचो, वहाँ से आगे सोचें, छोड़ें। आई अंडरस्टैंड वाई यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन आउट ऑफ कंसर्न, बट इतना बड़ा वो बनता नहीं था। बट वही वाली बात है, जब बात में वज़न नहीं होगा तो शोर से डाला जाएगा। तो खैर है, यही है। बाकी भाई इस मुल्क में सारे एक ही जगह से आते हैं, सारे पॉलिटिक्स, और सारे एक ही जगह से। लड़ाई सिर्फ ये है कि हमें गोदी लो, और कोई लड़ाई नहीं है। ये मेरे आपके राइट्स के लिए लड़ाई ना पहले कभी थी ना आगे कभी है, सिर्फ बारी की लड़ाई है। 3 साल का एक साइकिल होता है, हर 3 साल में आप देख लें साइकिल होता है। पहले ये ऊपर जाता है, अच्छा ये ज़्यादा मशहूर हो रहा है, इसको खींचो तुम आ गया हो, ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, चलो इसको खींचो, अब तुम दोबारा बाहर आ जाओ। आप पिछले 40 साल का डेटा उठा लें, आप अखबार उठा लें, आपको यही चीज़ें नज़र आती रहेंगी। इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। और जिस दिन पाकिस्तानियों ने ये गेम समझ ली कि हमारी लड़ाई ये और ये नहीं है, हमारी लड़ाई शायद इससे ऊपर है या आगे पीछे है, तो उनको समझ आएगी कि चल क्या रहा है। वरना ये इसी लूप में एक दूसरे को गालियाँ देंगे, कभी ज़बान के उस पर, कभी पॉलिटिकल व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कभी ज़बान पे, कभी मसलक पे, इन्हीं झगड़ों में लगे रहेंगे, नुकसान सिर्फ अपना करेंगे। जो रूलिंग एलीट है वो इन्जॉय करती है इस मुल्क में, उसका काम यही है कि इन ढक्कनों को लड़ा के रखो ताकि हम आराम से बारी बारी खेल लें। एंड दे ऑल सीम टू बी इन्जॉइंग। सबके बच्चे सेट हैं, सबके कारोबार सेट हैं, सबकी बेहतरीन लाइफ है, सबका ओके की रिपोर्ट है। सड़ रही है, मर रही है तो आवाम मर रही है, और कुछ नहीं है। जिस दिन आवाम ने ये रियलाइज़ कर लिया उस दिन क्रांति आ सकती है। वरना हमने कमेंट तो कर लिया ना, हमारे हिस्से का तो कमेंट हमने कर लिया ना, हम तो इतना ही कर सकते थे। सो क्यूट। खैर, गुड लक।
और अवॉइड करें इस तरह की डिस्कशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।